فسانہ آزاد ایپیسوڈ نمبر 2۔ بڑے بڑے زہاد صد سالہ تسبیح و تحلیل بھول گئے، اچھے اچھے متشرع ان کے مصحف رخ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ ایک باقی ادا نے برسوں کی ریاضت خاک میں ملا دی۔ پنجا زد عشقش لباس پارسائی پارا شد، طاعت صد سالہ امتا راج یک نظارہ شد۔ ہے اب یہاں رہ کیا گیا، گلی کوچوں میں کتے لوٹتے ہیں، سو جب سے 2 گنڈے کتا ملنے لگا اب وہ بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ اللہ، ایک وہ زمانہ تھا کہ ساکنوں کے مزاج نہیں ملتے تھے، بانکے ترچھے رئیس زادے ایک ایک دم کی 2 اشرفیاں کھنا کھن اور چھنا چھن پھینک دیتے تھے۔ یا اب ایک زمانہ ہے کہ شہر بھر میں اس سرے سے اس سرے تک شمع لے کر ڈھونڈیے تو شمع را امبری منہ اربدہ جو، محبوب آئینہ زانو کا پتہ نہیں، میدان خالی، نہ جندر نہ مندر نہ پارا والی۔ کل محمد علی کی دکان سے 2 سیر خمیرہ بنوا کر فرنگی محل سے نئی سڑک کی طرف جو نکلا تو نکڑ پر ایک ہاتھی بندھا دیکھا، سونڈ سے گھاس اچھال رہا تھا۔ پوچھا، کیوں میاں یہ کس کا ہاتھی ہے؟ ایک خوش قطع خوش وضع جوان بول اٹھا کہ حضرت یہ بی حیدر جان کا ہاتھی ہے۔ قسم خدا کی جھوٹ بولنا اور سور کھانا برابر ہے۔ واللہ ایسا مسرور ہوا کہ آنکھیں پرنم ہو گئیں، سر جھک گیا، دل بھر آیا۔ اللہ رے عروج، خدا آباد رکھے لکھنؤ کو پھر غنیمت ہے، نظر کوئی نہ کوئی اچھی صورت آ ہی جاتی ہے۔ شکر ہے خداوند کے لکھنؤ میں اب بھی ارباب ہمم موجود ہیں، اور ہے نہیں تو دنیا کیوں کر قائم ہے۔ واللہ جو کسی سے ملنے کو جی بھی چاہتا ہو، وہ لوگ ہی نہیں، وہ صحبتیں ہی نہیں، وہ چہل پہل نہیں۔ واللہ قیصر باغ کی بہار اور مہوشان پری پیکر کا نکھار اس وقت آنکھوں میں پھر گیا۔ جس طرف نکل جاؤ سرخا سرخ گلے لالا کھلا ہے، اور اس گلے لالا کی بہار میں غنچۂ دہاں، گل اندام، گل فام، گل رنگ، گل بدن عجب ٹھسے سے چمک چمک کے چھپ چھپ کے چھپ دکھاتے تھے۔ نور کا عالم، دن عید، رات شب برات، اندر کا اکھاڑا گرد، پرستان مات۔ اگر ہرے بھرے درخت کے سائے میں کوئی سروقد چھپ رہا تو شجر کو نہال کر دیا۔ کلیوں نے کسی غنچہ دہن کو دیکھا اور کھل گئیں۔ نرگس شہلا کی نظر بازی، سوسن کی زبان درازی، بلبل کی خوش آوازی، الغرض باغ نزہت آگین اور حسینان زہرہ جبین، اور اس کے فریدوں فر جم چاہ مکین پر گلزار ارم، حوران بہشت اور ملائکے نوری کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اب بھی غنیمت ہے کہ مہینے 2 مہینے کسی رنگین طبع کے طفیل میں کسی آتشی روح سے آنکھیں سیک لیتے ہیں۔ صیاد نے تسلی بلبل کے واسطے کنجے قفس میں حوض بھرا ہے گلاب کا۔ آزاد، واللہ کتنے تو چین میں تھے، صبح کو جام، شام کو دل آرام، طبلے کی تھاپ، بائیں کی گمک، پازیب کی چھم چھم، برق و شوق کے شعلہ آواز کی چمک، پاؤں کی تھپک، عطر کی مہک، رخسار تاباں کی جھلک، مگر عمر سب مفت میں کھویا کیے نادان رہے۔ میاں آزاد نے یہ مصرع پیچیدہ اس بے ساختہ پن سے عین موقع پر ادا کیا کہ ہمارے حبیب لبیب کھلکھلا کے ہنس پڑے اور ایسا فرمائشی قہقہہ لگایا کہ چھمی جان کے منہ پر ہوائیاں چھوٹنے لگیں۔ اب چیتے کہ ایک سالی سے بالخیر بھی چپکے ساری داستان سن رہے تھے حبیب لبیب چھمی جان سے۔ یا حضرت مجرا عرض ہے، اس خوش بیانی اور پرگوئی کے قربان، ماشاء اللہ کس آن اور کس شان سے آپ نے پرانی صحبتوں کا مرقع کھینچ دیا۔ ہم نے فصیح و زباں داں تو بہت دیکھ ڈالے ہیں، مگر آپ سب سے نرالے ہیں۔ واللہ آپ اپنے وقت کے سلیمان ساؤجی ہو۔ مرغان خوش آہنگند در باغ سخن لیکن، نالیدنی بلبل شور دیگرے دارد۔ آپ کی جادو بیانی تو اس دم اپنا کام کر گئی، مگر حضرت سچ کہیے گا ان صحبتوں سے ملا کیا؟ سرخ روح ہوئے یا روح سیاہ، فارغ البال ہوئے یا تباہ، یہاں تو نتیجے پر نظر ہے۔ چھمی جان، قبلہ یہ تو بڑا کڑا سوال ہے۔ یکے نقصان مایا، دیگرے شماتت ہمسایا۔
सच तो ये है कि उम्र भर इसी नाच और रंग के फंदे में फंसे रहे। दिन रात तबला सारंगी बायां, ढोल सितार बीन, याद इलाही बालाए ताक, तहसील इल्म छप्पर पर, तहजीब की दुम में नुमदा, जामाए इंसानियत से खारिज, आदमियत छू नहीं गई। खासे पीर बुखारा के छटे हुए शोहदे आन बैठे। लेकिन अब तो आबे के अज़ सरगुज़श्त, चयक नेज़ा व चयक दस्त का नक्शा है। आप जो इस भरोसे हों कि हमें तहजीब सिखावें तो ये खैर सल्ला है। कहीं बूढ़े तोते भी कुरान पढ़ा करते हैं। आज़ाद: अजी हज़रत, ये क्या बदपरहेजियाँ हैं। अभी तो आप हम पर आवाज़ें कस रहे थे, सैकड़ों ही फब्तियाँ कह डालीं, या अब अपने ऊपर आप ही लाहौल पढ़ने लगे। सद शुक्र के हुजूर अपनी बदवजही बदअतवारी के तो मुखिर हुए। कड़वे न होजिए तो कहूँ कि आप इस मीठी वजह पर लानत भेजिए और छिलछिला तरश तरशा कर वज़ादार बन जाइए। ये लोच ये लचक कुछ निस्वां ही को खूब ज़ेब देती है, और ये दस्ते ही नाई, ये नाजुक कमरी, ये मिस्सी की ढरी पान की तहरीर दुल्हन ही के लिए मौजू है। ज़रा तो इस दाढ़ी मूंछ का ख्याल रखो, नामे खुदा अब मर्दुए बनो। छम्मी जान: बस चलिए हटिए, ये भिर्रे किसी ऐसे वैसे को दीजिए। यहाँ बड़े बड़ों की आंखें देखी हैं, आपके झांसे में कोई अनीला आए तो आए, हम पर चकमा ना चलेगा। हबीब लबीब: क्यों क़िबला काबा, खुद्दाम हुजूर को हमारे गद्दार शहर लखनऊ में डोम डम्हाड़ों की ही सोहबत पसंद आई या किसी और की भी वजह भाई? लखनऊ में तो हर फ़न का बाकमाल मौजूद है। वो कौन सा हुनर है जो यहाँ मफकूद है? कोई ऐसा शहर दुनिया में नहीं, गैरते दैरे कुहन है लखनऊ, फैले हैं इसके दरे नज़्म इस कद्र, चश्मे आलम में अदन है लखनऊ। छम्मी जान: हम तो हमेशा ऐसी ही टुकड़ी में रहे, रोज़ो शब यही चर्चे, यही चहचहे, यही कहे। घर फूंक तमाशा देखा, लंगोटी में फाक खेला, खूब गुलछर्रे उड़ाए। फिरंगी महल की तरफ से भी निकले तो कमरों ही को ताकते हुए। कोई जलसा खाली ना गया। मियाँ शोरी के टप्पे, करीबा की ठुमरियाँ, घसीट खां की टीपदार आवाज़, बहादुर अली की गड़करी, सादिक अली ख़ान की लयदारी, प्यारे ख़ान का ख्याल छोड़कर जाएं कहाँ। अब तो यही दीनो ईमान है। सारंगी मुजरे की आवाज़ सुने तो झप से घुस पड़े। मुअज्जिन अज़ान दिया करे तो सुनता कौन है। बहुत गुज़र गई, थोड़ी बाकी है। आज़ाद: इस फिरंगी महल का नाम आफ्ताब जहाँ ताब की तरह सारी खुदाई में रोशन है, और उलमाए फिरंगी महल की मुसन्नफ़ात मुसल्लिमातुल मशहूर का शम्स फ़ी निस्फ़ुल नहार है। करबलाए मुअल्ला, मदीनाए मुनव्वरा, मसहद मुक़द्दस, बैतुल्ला तक के कदरदां और नुक्तादां इन बुज़ुर्गान खुर्शीद ज़मीर बैज़ा तहरीर के कलाम क़ुदरतुल क़याम पर एहसनत कहते हैं। महीनों की राह तय करके शायकीन इल्म हुनर, कस्बे कमाल और तहसील उलूम के लिए यहाँ आते, और चार दांगे हिंद के उलमा फैज़ पाते हैं। ये वो फिरंगी महल है। मगर क़द्र गोहर शाह दानद या बदानद जोहरी, जनाब गुफ़रान मुआब मुफ्ती सादुल्ला साहब, नूरुल्लाहु मरकदाहु मुफ्ती मीर अब्बास साहब, मदे ज़िल्ले आले हज़रत मुल्ला हसन, यद तूला मौलवी मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह साहब, और फ़िरदौस आराम गाह मुज्तदुल असर सैयद मोहम्मद साहब को इफ्तिखार लखनऊ बल्कि फ़ख्र हिंदुस्तान कहना ऐन सवाब है। अब शोरा को देखिए। शायर मोजिज़ बयान आतिश ज़बान ख्वाजा हैदर अली आतिश, मरजाए सुखन वरान नज़दीक व दूर शेख नासिख मग़फ़ूर अपने फ़न में यकताए रोज़गार हो गए हैं। मरसिया गोई तो अहले लखनऊ का हिस्सा है। खुदाए सुखन मीर अनीस साहब को खुदा बख्शे वल्लाह, फसाहत और रोज़मर्रा पर तो इब्तदाए आफरीनश से कोई इस दर्जा आवी ना हुआ होगा। इमाम काबाए बलागत दबीर उत्तार व तहरीर मिर्ज़ा दबीर साहब ताबा सरा अपने तर्ज़ दिलकश के मौजिद थे, जिनके एक एक बंद से शान कसायद नमूदार है। नसीम और सबा ने आतिश को भड़का दिया। ई सुखन बायत ब आबे ज़र नविश्त,
गोया तो गोया बुलबुले चमने मानी परवरी था, रिंद का रिंदाना कलाम काबिल स्वाद है, ख्वाजा वज़ीर को शहनशाह कुल मर्द खुश बयानी कहना ऐन सदाद है। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर मबरूर की तुरबत को खुदा अंबरी करे, वल्लाह वो नसर दिल पजीर व बेनज़ीर लिखी के कलम तोड़ दिए। एक एक सतर गंजीनाए मानी, एक एक फ़िक्रा काने नुक्तादानी है। हकीम नवाब मिर्ज़ा साहब मौजूद तर्ज़ नवी थे। मुंशी ज़हीर साहब रहमतुल्लाह आले वाक़िफ़ निकाते दरी व पहलवी थे। अलगरज़ अब भी एक एक तिफ़ले मकतब मुहीती ख़्वान है, बल्कि रश्के लुक़मान है। यहाँ के सनाआन चाबुक दस्त के भी झंडे गड़े हैं। कुम्हार तो ऐसे दुनिया के पर्दे पर ना होंगे। मिट्टी की मूर्तें ऐसी बनाई कि मुसव्विरों की किरकिरी हो गई। बस यही मालूम होता है कि मूरत गोया बोला ही चाहती है। जिस अजायब घर में जाइएगा, लखनऊ के कुम्हारों की कारीगरी ज़रूर पाइएगा। खुश नवीसों ने कातिब खुदरत का नविश्ता मिटा दिया। निखाते मिसले नजूमे दरख्शां, दायरे आफताब से ज़्यादा फ़िरोज़ां। एक एक हर्फ की 5-5 अशरफियाँ लीं, ऐन नाबीनाए मादरजाद की आँखों में नूर बख्शे। बांके शेर का पंजा तोड़ डालें, हाथी को डपटें तो चिंगाड़ कर मंजिलों भागे। हेमराज रुस्तम सीस्तानी था तो शैदी लंदूर हफ्त खाने मनाजिले पहलवानी। असफंदियार रुई तन को चुटकियों में लड़ा दें। उस्ताद मोहम्मद अली ख़ान फकैत, छरैरा बदन, लेकिन गतका हाथ में आने की देर थी। परे के परे दम में साफ़ कर दिए। कड़क कर तमंचे का तुला हुआ हाथ लगाया तो हरीफ का मुंह फिर गया। अखाड़े में गतका लेकर खड़े हुए तो मालूम हुआ बिजली चमक गई। एक दफ़ा ललकार दिया कि रुक, हथकड़ी देख, संभल, खबरदार, होशियार, ये आई वो आई, तड़ वो पड़ गई। बारकल्ला की आवाज़ फलके हफ्तुम पर पहुँचने लगी। बला की सफाई, गज़ब की सफाई, सितम की सफाई, क़यामत की सफाई थी। जो मुँह चढ़ा मुँह की खाई, सामने गया और शामत आई। सिन उसका घटा था जो दिल बराना बढ़ा था, मुँह की वही खाता था जो मुँह उसके चढ़ा था। कामदानी वो इजाद की कि उड़ीसा और कोचीन से फरमाइशें आने लगी। हबीब आज़ाद से, वाह क़िबला क्यों ना हो चश्मे बद्दूर, किस लताफ़त से आपने लखनऊ के उलमाए अजल, फ़ज़लाए अकमल, सनाआन कामिल फ़न और पहलवानान रुई तन के कमाल का हाल बयान किया। हक़ यूँ है कि लखनऊ का इल्म फ़ज़ल, लखनऊ के मुहावरात, रंगीन फ़िक़रात, दिल नशीन खुश बयानी, तर्ज़ गज़ल ख़ानी अलमशहूर फ़ी अलमशारिक़ व अलमग़ारिब है। लेकिन छम्मी जान को उलूम से सरोकार ना फ़नून से मतलब। ये तो ताल सम सुर के फेर में पड़े हैं। अफ़सोस। छम्मी जान, हज़रात इस वक्त भैरवी सुनने जाता था और जागे भाग प्यारा नज़र आया। सुनने का शौक़ चर्राया था, लेकिन आपने पादरियों की तरह वाज करके काया पलट कर दी। असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है। अब जो हमें राह पर लाते हो तो इतना मान जाओ कि ज़रा कदम बढ़ाए हुए हमारे साथ हाथ में हाथ दिए हुए पाटे नाले तक चले चलो। देखूं तो परिस्तान से क्यों कर भाग आते हो। उन्हीं बुतों का सजदा ना करो तो कुछ जुर्माना दूं। और साफ़ तो यूँ है कि बिला इम्तिहान क़ायल नहीं है बंदा किसी शेखो शाहब का। उस इंदर के अखाड़े से कोरे निकल आओ तो टांग की राह निकल जाऊं और तुम्हारी ही बैत लाऊं। आज़ाद घड़ी जेब से निकाल कर, आई 8 पर 21 मिनट आए। इस खुश गप्पी ने आज सितम ढाया, लेक्चर सुनने में ना आया। मुफ्त की बकबक झकझक, लाहौल वला क़ुव्वत, वल्लाह लेक्चर लायक शुनीद था। लानत बकार शैतान। छम्मी जान, अल्लाह जानता है इस वक्त कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। न जाने तड़के तड़के किस मनहूस का मुँह देखा है कि भैरवी के मज़े हाथ से गए।